Dear learners, I am Dr. Sunil Kumar Singh, Senior Professor in Faculty of Education, Banaras Hindu University. Today we are going to present lecture number 24 related to the course Teaching Skills for Higher Education. The title of this lecture is Relevance of Skill of Reinforcement. प्यारे अधिगमकर्ताओं, आज हम लोग उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण कौशल पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याख्यान संख्या 24 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है पुनर्वलन कौशल की प्रासंगिकता। Certain contents which have been included in this particular lecture are introduction, then relevance to student engagement, relevance to classroom management, relevance to academic achievement, relevance to psychological well-being, relevance to teacher effectiveness, relevance across educational levels, best practices, optimizing reinforcement strategy, reinforcement in higher education, reinforcement in online environment, real classroom scenarios, discussion and self reflection followed by conclusion। इस प्रकार से विषय वस्तु में इन 13 भागों को सम्मिलित किया गया है, जिनको हम विशिष्ट रूप से एक के बाद एक विस्तार से आगे प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तावना के रूप में ये कहा जा सकता है कि कक्षा में विशेष तौर पे विद्यार्थियों की क्रियाशीलता के लिए इस कौशल की प्रासंगिकता अहम है, और विशेष तौर पे प्रबलन एक ऐसी घटना है जो निर्धारित वांछित तरीके से किसी भी क्रिया को घटित होने में सहयोग प्रदान करती है। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम लोग प्रासंगिकता के विषय में बातचीत करेंगे और इसमें भी बातचीत करेंगे कि इसका मूल आधार विशेष तौर पे अधिगम मनोविज्ञान में निहित है और व्यवहारात्मक सिद्धांतों पर केंद्रित है। यह मूल रूप से एक आधारभूत कौशल है जिसका उपयोग प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए और विद्यार्थियों की क्रियाशीलता के लिए किया जाता है। So here the relevance is obvious when you see that it facilitates students' engagement and ultimately it is helpful in promotion of interaction among students and control of various types of stimuli to regulate their learning. Here you will also visualize certain rootedness in learning psychology and behavioral theory. Basically, it is one of the foundational skills for effective classroom management and student engagement. Now, relevance to student engagement goes on like this. It is a attention catalyst. It means it increases student focus on learning material. It is a participation driver at the same time. It means it encourages active classroom participation. At the same time, it facilitates feedback mechanisms, means provides immediate response to student contributions. It is also a motivation enhancer. It means it builds intrinsic and extrinsic motivation. It is also a social learning tool. It means it models appropriate academic and social behaviors. इसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों की क्रियाशीलता के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यह एक कैटलिस्ट के रूप में काम करती है जो कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण बढ़ा देता है और अधिगम सामग्री से वो जुड़ जाते हैं, उस पर केंद्रित हो जाते हैं। यह सहभागिता के लिए भी ड्राइवर के रूप में काम करता है। साथ में ही प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया के लिए भी यह अत्यंत लाभप्रद है। अभिप्रेरणा की दृष्टि से भी यह अत्यंत लाभप्रद है। वो यह आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की अभिप्रेरणा को कायम रखता है।
यह सामाजिक अधिगम उपकरण भी है, जिसमें हम ये देखते हैं कि यह ठीक ढंग से अकादमिक और सामाजिक व्यवहारों को सही दिशा प्रदान करता है। Now coming to the third part, which is relevance to the classroom management. It is being said here that it is helpful in disciplining framework. It means it strengthens classroom discipline. It also helps in behavior regulation by alerting students to exhibit and check their disruptive behavior. It means it is helpful in behavior regulation of students in the classroom. It helps in the self management. It means it assists students in developing self regulation. It is also helpful in developing learning climate by creating positive educational environment, and it also helps in managing group dynamics because it improves classroom cohesion and cooperation. तो कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में प्रासंगिकता की बात इस प्रकार से है कि यह अनुशासन की संरचना को प्रोत्साहित करता है, व्यवहारों को नियंत्रित करता है और विद्यार्थियों को सक्रिय करता है, जिससे वह नकारात्मक व्यवहारों को कक्षा में न प्रदर्शित करें। इससे नकारात्मक व्यवहार चेक हो जाते हैं। उनके स्वतः प्रदर्शन प्रबंधन में भी यह सहयोग प्रदान करता है। साथ ही में एक सकारात्मक अधिगम परिवेश का निर्माण करता है और कक्षा के विभिन्न प्रकार की गतिशीलता को यह नियमित और नियंत्रित करता है, जिसमें कक्षा में एक साथ मिलजुल करके सहयोगात्मक तरीके से कार्य करने की पद्धति विकसित होती है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ रिलेवेंस, दैट इज रिलेवेंस टू एकेडमिक अचीवमेंट। अकादमिक उपलब्धियों के संदर्भ में प्रासंगिकता, जिसमें हम ये देखते हैं कि अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विशेष तौर पे आकलन के उपकरण के रूप में भी उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों के उपलब्धि को पहचान देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को सतत प्रोत्साहन देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और इस प्रकार विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस या उपलब्धि को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इन ए नटसेल, it changes the learning environment by helping students retain what they have learned. It is also utilized to use variety of tools which enable students to evaluate their learning by their self-assessment. Then it is also useful in acknowledging student accomplishments. It means recognizing students in the class, which helps in persistence, promotion by encouraging students to achieve more, and ultimately it facilitates continuous improvement among students, hence performance of students in the class. Now coming to the fifth part, that is relevance to psychological well-being. मनोवैज्ञानिक कल्याण की दृष्टि से इसकी क्या प्रासंगिकता है? It is helpful in confidence building. It means it strengthens students' self-confidence. It strengthens students' confidence, but at the same time it reduces anxiety. It reduces fear of participation and failure. It develops a belonging sense by creating inclusive classroom environment and identity development, in which it supports positive academic identity information, and resilience building also, where it encourages persistent through challenges. समग्रतया हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में आत्मबल का संचार कर यह मनोवैज्ञानिक रूप से उनको दृढ़ बनाता है। यह उनके डर को कम करता है, दुश्चिंता को घटाता है और सहभागिता में उनको आगे ले जाता है, जिससे वह अनुत्तीर्ण होने से अपने भय को कम कर पाते हैं। इनकी प्रवृत्ति इस प्रकार भी विकसित होती है कि इन तरीकों से कक्षा समावेशी बनती है,
जिसमें विद्यार्थी उस कक्षा को अपनी कक्षा के रूप में समझने लगता है, जिससे उसकी सहभागिता बढ़ जाती है। अपनी पहचान का भी विकास कक्षा में वो कर पाता है और सकारात्मक अकादमिक पहचान बना पाता है। विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करते हुए वह कक्षा में अपने को निर्मित कर पाता है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से विद्यार्थी को ये सुदृढ़ करता है। Now, sixth one is relevance to teacher effectiveness. It helps in instructional feedback by providing insight into teaching effectiveness. It also helps in relationship building by strengthening teacher-student rapport. It helps in communication enhancement by improving dialogues. It also helps in teaching reflections by offering opportunities for pedagogical adjustment, and it helps in professional development by building essential teaching competencies. समग्रतया हम इस संदर्भ में ये कह सकते हैं कि शिक्षक की प्रभाविता के संदर्भ में भी इसका महत्व है, जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षण की प्रभाविता को बढ़ा देता है। उसकी अनुदेशनात्मक क्षमता प्रतिपुष्टि के माध्यम से बढ़ जाती है। अपने संबंध को भी कक्षा में बेहतर कर पाता है। अपनी संप्रेषणीयता को संवादों के माध्यम से और बेहतर बना पाता है और विशेष तौर पे किस तरह से शिक्षा और शिक्षण शास्त्र में समन्वय किया जाए और इसको वो सीख पाता है और कर पाता है। साथ ही में अपना वह व्यावसायिक विकास भी कर पाता है, क्योंकि वह अपनी शिक्षण क्षमताओं को बेहतर बना पाता है। Now coming to 7, that is relevance across different educational levels. विभिन्न शैक्षणिक स्तरों के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है? Here we can see, in the case of higher education, especially it is valuable in university teaching, because the clientele which is coming to higher education is very diverse and usually the first generation learners, so it is quite useful for all of them. It facilitates adult learning principles also by aligning with andragogical approaches. It helps in professional preparation by modeling workplace feedback mechanisms. It facilitates critical thinking by reinforcing sophisticated cognitive processes. It helps in research skills building by encouraging scholarly inquiry and persistence. हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर भी इसका उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। विशेष तौर पे उच्च शिक्षा में अधिकांश आने वाले विद्यार्थी पहली पीढ़ी वाले होते हैं और इस तरह से उनमें बहुत विविधता होती है। ऐसे में यह कौशल उनके लिए अत्यंत प्रभावी होता है। जो वयस्क अधिगम करता है उनको विशेष तौर पे एंड्रागोजी का उपयोग करके पढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। व्यवसाय वृत्ति के निर्माण की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है और विशेष तौर पे कार्य स्थान पर विभिन्न प्रकार की प्रतिपुष्टियों का लाभ लेके अपना निर्माण कर पाता है, आलोचनात्मक चिंतन कर पाता है और शोध कौशलों को भी बढ़ाता है। Some best practices optimizing reinforcement strategies are as follows. It personalizes to student preferences, gradually shifts from external to internal motivation. It mixes reinforcement types strategically and uses reinforcement schedules appropriately. It balances individual and group reinforcement and it adapts techniques to learning context. बहुत प्रकार के बहुत ही श्रेष्ठतम अभ्यासों को प्रबलन की दृष्टि से यहाँ पे ये रखा गया है। विशेष तौर पे हम ये पाते हैं कि विद्यार्थियों की वरीयता को यह ध्यान रखते हुए शिक्षक आगे बढ़ता है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि बाह्य से आंतरिक अभिप्रेरणा की तरफ ये ले जाता है। विशेष तौर पे हम विभिन्न प्रकार के प्रबलनों को एक साथ मिला करके और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम उनका सही ढंग से उपयोग करते हैं। व्यक्ति और समूहों में संतुलन बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और अधिगम
परिदृश्य के संदर्भ में किस प्रकार विभिन्न प्रकार की तकनीकियों का उपयोग किया जाए उसमें भी सहयोग प्रदान करता है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट point, reinforcement in higher education. We can visualize it as follows. It provides constructive feedback on advanced academic tasks. It uses peer reinforcement to build collaborative learning. It applies professional validation to recognize scholarship. It cultivates scholarly communities for sustained growth. It supports intellectual risk-taking through recognition, and it enhances academic self-efficacy via appropriate reinforcement. उच्च शिक्षा की दृष्टि से अगर हम ये देखें तो यह सकारात्मक प्रतिपुष्टि में सहायक होता है और अकादमिक कार्यों को अग्रगामी बनाता है। विशेष तौर पे समूह में अपने समूह के मित्रों के सुझावों को लेकर के और हम आगे एक कोलैबोरेटिव या समावेशी और समन्वित अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। व्यवसाय वृत्ति की पुष्टि भी इसके द्वारा हो सकती है और खास तौर पे स्कॉलरली कम्युनिटीज में सस्टेन्ड ग्रोथ को प्रोत्साहित करने वाला होता है। यह बौद्धिक तरीके से किस प्रकार से चुनौतियों को ग्रहण किया जाए उसमें भी संबल प्रदान करता है और अकादमिक स्वतः उत्कृष्टता को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार यह अत्यंत लाभप्रद होता है। ऑनलाइन इन्वायरमेंट में भी रीइंफोर्समेंट का उपयोग किया जाता है। The particular uses of reinforcement in online environment are like this. Digital equivalents of traditional reinforcement are used. Virtual reinforcement indicators may be utilized. Automated and personalized feedback systems are used. Remote communication of approval is done. Creating online reinforcement communities is also done. And technology mediated reinforcement techniques are also utilized. ऑनलाइन पद्धति के पठन पाठन के अंतर्गत प्रबलन का उपयोग बहुत ही सुगमता के साथ किया जा सकता है। पारंपरिक तरीके से जिस तरह से प्रबलन दिया जाता है वैसे ही ऑनलाइन लर्निंग में भी हम इसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। बहुत प्रकार के संकेतकों का निर्माण कर सकते हैं। उन संकेतकों को सही ढंग से यदि कोई परिणाम देता है तो स्वाभाविक रूप से उसको प्रतिपुष्टि देने की प्रक्रिया में सम्मिलित कर सकते हैं और दूर से भी हम विद्यार्थी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कम्युनिटीज का भी निर्माण कर सकते हैं और तकनीकी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की प्रबलन की तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। Now some real classroom scenarios. You look at scenario 1. A student struggles with math but attempts a problem. Here it has been mentioned that he is struggling but attempting to. The teacher is seeing and saying, I see you tried a new approach. Let's build on that. It means teacher is trying to reinforcement the student in the class. कक्षा में हम ये देखते हैं कि इस सीन के अंतर्गत गणित के प्रश्नों को हल करने में विद्यार्थी को समस्या आ रही है, लेकिन वो समस्या को हल करने की चेष्टा कर रहा है और समस्या को हल भी कर रहा है। विद्यार्थी का अवलोकन करते हुए अध्यापक यह देखती है कि वह संघर्ष करते हुए अपने कार्य को कर रहा है, तो वो ये कहती है कि तुमने कोशिश की, तुमने सही दिशा में कार्य किया और आओ हम आगे बढ़ करके उसको और आगे बढ़ाते हैं या निर्मित करते हैं। सेकंड सिनेरियो के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला ये विद्यार्थी वह अपना हाथ उठाता है लेकिन वह बाधाएं नहीं उत्पन्न करता है। शिक्षक उसको ये कहता है कि आपको धन्यवाद कि आपने अपने टर्न का इंतजार किया। So you see that a talkative student raises hand instead of interrupting the class, and the teacher reciprocates with the reinforcement, thank you for waiting for your turn. Now coming towards the last part of this lecture, there are certain points for discussion and self-reflection. Here is one: audit your reinforcement habits.
which dimension needs attention. It means you focus on your habits of reinforcement and find out as to which dimension needs attention. तात्पर्य है कि अपने प्रबलन की आदतों की समीक्षा करें और ज्ञात करें कि किस आयाम पर आपको केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस तरह से आप विचार कर सकते हैं। Now coming to the second, which reinforcement dimension do you use most? प्रबलन का कौन सा आयाम आप सर्वाधिक उपयोग में ले आते हैं, आप इसको ज्ञात करें। तो इन चीजों पे यदि हम विचार करते हैं, स्वतः समीक्षा करते हैं, हम तो निश्चित रूप से अपना सुधार कर पाएंगे। सो टू कंक्लूड एट द एंड, एज ए बेसिक टीचिंग स्किल, it empowers educators to motivate learners, sustain engagement, and promote long-term success. Its relevance extends beyond the classroom, nurturing lifelong learning and personal growth. Ultimately, reinforcement is not just a strategy, it is a vital pedagogical skill that underpins responsive student centric education. निष्कर्षतया हम ये कह सकते हैं कि प्रबलन कौशल शिक्षक को सशक्त बनाता है, अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करता है, क्रियाशील करता है और उसकी दूरगामी सफलता को सुनिश्चित करता है। इसकी प्रासंगिकता मात्र कक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आजीवन पढ़ने के लिए उसको प्रेरित और पोषित करता है और व्यक्तिगत विकास भी सुनिश्चित करता है। इसलिए प्रबलन मात्र एक आव्यूह या एक योजना ही नहीं है, बल्कि शिक्षण कौशलों की दृष्टि से यह अत्यंत सशक्त और आवश्यक तरीका है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा को जारी रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो आज जो पक्ष बताए गए हैं उन पे आप विचार करें और उनको अपने व्यक्तित्व में, शिक्षण व्यक्तित्व में अंगीकार करें। थैंक यू ऑल।